जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं 2004 से मार्च 2025 तक जो रिटायर हुए हैं और अभी होने वाले हैं, उनको भी ये 5 जो पॉइंट्स हैं उसका लाभ मिलेगा। उनके लिए जो उनका एरियर्स है वो भी हम पे करेंगे, उस एरियर्स में कुछ इंटरेस्ट भी होगा, लेकिन उन्होंने जो ऑलरेडी विड्रॉ किया है कॉर्पस उसका एक एडजस्टमेंट भी होगा। एडजस्टमेंट के बाद जो एरियर्स पे करना है वो भी पे करेंगे, ताकि ऐसा कोई भी कर्मचारी जो आज तक एनपीएस में रहा है और रिटायर हो चुका है उनको भी ये सब लाभ मिलेगा। अब और इसका the expenditure involved in this in the first year, it will change from year to year. The expenditure for the arrears will be 800 crore rupees, and in the first year of its implementation, the additional cost, the contribution going from 14 to 18 and a half, it will cost about 6,250 crores in the first year. ठीक है, एरियर्स का कॉस्ट होगा 800 करोड़ तकरीबन, 800 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, और एनुअल जो कॉस्ट इंक्रीज है कंट्रीब्यूशन मतलब 14% से 18.5% जो सरकारी जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि दिस इज अ फुल्ली फंडेड कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम, इसमें देयर इज नो थ्रो फॉरवर्ड ऑफ लायबिलिटीज टू एनी फ्यूचर जनरेशन. इट इज नॉट बीइंग सेड दैट द फ्यूचर गवर्नमेंट विल कम एंड समहाउ गिव द guaranteed pension. This assured pension is being funded each year fully from the budget and will be absorbed in the budget. So that extra contribution in the first year is estimated at 6,250 crore rupees. It will change year by year as the numbers change. और अनुरोध है कि आप पहले अपना परिचय दें और फिर प्रश्न पूछ लें. 13 नंबर पीछे, 30 नंबर, ये यहाँ. Got answered. You answered? Yeah. Yeah, Sunil Prabhu sir, NDTV. Mr. Somnathan, just to understand for, is it beneficial for a common man who's listening to you today? Will it be better for them to continue in new pension scheme or unified pension scheme? Simply put, I have a few more other questions. I think in 99+% of cases, it will be better to go into the UPS. There could be some very odd combination of circumstances which I am not able to envisage, but to the best of my knowledge, almost nobody will want to remain in NPS. But if there is somebody, we are leaving the option with them. If there is some peculiar circumstance where they prefer that, then that is up to them. I would just like to add to this point, the entire JCM and all the members of the associations who are representing the central government employees, they are all very happy about this movement, this entire scheme, and they have also met our Honorable Prime Minister today to thank him for this scheme. The other issue, sir, is in the new pension scheme. You're saying it's fully funded, 800 crores is the first thing. This will be applicable even for state government employees. See, the terms of reference which were given to the committee and which the Prime Minister had asked us to work on is to design a scheme for the centre which can be adopted by any state in the same manner. So, as you know, the existing NPS was adopted by all except 2 states from 2004. Some of them later have said that they are leaving, but that was a national architecture. The centre funds it in its own way. Similarly, this is a national architecture. The architecture is national. Centre is going to use this architecture. All states are welcome to join it, and based on their own numbers, their contributions, etc., will be fixed. But the architecture is common. So you will fund also the state? No, we will not. The state government's employees will be funded by the state governments. 255, 255. मैं यूएनआई से हूँ. मेरा सवाल ये है कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम में जो टोटल एमोल्यूमेंट का जितना परसेंटेज कब मिलता था और इसमें कितना मिलेगा, टोटल एमोल्यूमेंट्स, मंथली एमोल्यूमेंट्स का कितना होगा? सेम है, 50%. नहीं, 50% तो बेसिक पे का सर आप बता रहे हैं ना उसमें. Even in the existing old pension scheme, the pension is 50% of the pay. Even in the existing old pension scheme, it is 50% of the pay. And then there is a dearness relief.
Okay. The same dearness relief is applicable here also. So there is actually, it is the same. Same. There is no catch or hidden thing here. It is similar. Thank you. Sir, I am Deepak from Times of India, sir. So you talked about this, increasing it to 18.5%. So what exactly is the reason? And second point, will there be an annual actuarial, actual calculation? And will you do it every year rather than taking it forward? Sir? So the reason for the increase is we are giving additional benefits. So the benefits, now there is an assured guaranteed sum which has to be given. So actuarial calculations have been done to see that in every circumstance we should be able to meet this obligation. We are not postponing this obligation. We are not going to say that somehow we will manage in the future when the liability comes. We are absorbing the liability now, for which calculations have been done using actuarial methods. The PFRDA chairman was a part of this committee. They have gone into this in great detail. So they have calculated that as on today's assumed interest rates, inflation rates, etc., it requires an 18.5% contribution. However, there is also a provision for a once in 3 years reassessment, and on that assessment the government's contribution may be modified. But I want to make it clear, the staff contribution remains unchanged. So any changes which may happen through any such assessment will be on the government, not on the staff. The staff contribution remains at 10% unchanged. 17, Prashant. Yes, this is applicable to those who are in the new pension system. सर मैं प्रशांत हूँ एनडीटीवी से। आपने कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स की बात की सर। हाइंडसाइट में आपको लगता है कि ये पहले अगर हो गया रहता तो कई राज्यों में जो आपको हार मिली वो बड़ा मुद्दा बना था, तो ये नहीं होता। दूसरा सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप समझा सकें कि एनपीएस और यूपीएस में बेसिक अंतर क्या है, कहाँ कहाँ आपने बदलाव किया है? देखिए, अगर आप राज्यों की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी जीत मिली थी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। तेलंगाना में बहुत बड़ी एक अच्छी वोट शेयर में बढ़त हुई थी। आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका, उसमें एक प्रॉपर सिस्टमेटिक कंसल्टेटिव अप्रोच और डिटेल्ड रिसर्च वो मस्ट है। और दूसरी बात, कहीं पर भी जो भी काम करें उसकी क्या कॉस्ट आएगी, कितना आज हमारा ऑब्लिगेशन है, उन सब चीजों को सोच समझ के ढंग से करने का काम होता है। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखनी चाहिए, कांग्रेस ने जब ओपीएस की बात शुरू में की थी, उनके अंदर भी बहुत सारे अंतर्विरोध थे। आपने कई आर्टिकल्स और कई स्टेटमेंट्स कांग्रेस के बड़े नेताओं के भी देखे होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके स्वयं के अंदर भी बड़े अंतर्विरोध थे। और कांग्रेस ने अपना जब जनरल इलेक्शंस का मैनिफेस्टो दिया, क्या उसमें ओपीएस था? नहीं था। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ओपीएस की बात नहीं रखी थी। मोदी जी का कमिटमेंट है वेलफेयर के लिए, मोदी जी का कमिटमेंट है एक एक व्यक्ति के हित की बात सोचने के लिए, इसीलिए ये बहुत सोच समझ के ये स्कीम लाए। सचिन। Jatin from Economic Times. Ashwini sir, two questions. One, does this decision require approval from Election Commission or have the government taken the approval? Second, as Prashant asked, do you think it would have made more sense if you announced this scheme before Lok Sabha polls, or how it will impact the BJP prospects in upcoming assembly polls? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सारे फैसले लेना एक पूरी ऐसी एक नई कड़ी दिखाई है। 10 वर्षों में आपने देखा होगा, राजनीतिक मुद्दों पर बड़े फैसले लेना नहीं, फैसले लेना जनहित के मुद्दों पे। आज एक सोची समझी प्रक्रिया, बहुत लंबी डिटेल्ड प्रक्रिया के बाद में ये स्कीम आज अनुमोदन में आई है। इसमें इलेक्शन से कोई संबंध नहीं, इसका इलेक्शन के साथ कोई संबंध नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन के वाला विषय इसमें आता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं फिर आपको कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, राज्य सरकारों के कर्मचारी हो, उन सब ने पिछले 10 वर्षों में जो काम हुआ है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो,
समाज के हित के काम हो, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो बहुत सारे कानूनों में, उस सब को देखा है और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको हर इलेक्शन में मिला है। जिन इलेक्शंस में मैं डायरेक्टली कनेक्टेड था उसमें मैंने देखा था कि किस तरह से राज्य सरकार के कर्मचारी हो, केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, वो सब कहते थे स्पष्ट तौर पे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने राष्ट्र में एक नई अच्छी बहुत आगे भविष्य को सुधारने वाली शुरुआत की। Inflation indexation is already there on salaries, and the same index will be used for this. There is no need for any committee for this. That is why it is the same index which has been specified. The index was also mentioned in the presentation. That index will be applied to the pension in the unified pension system. So there is no need for any committee for that. 25. It is definitely fiscally more prudent. One, it remains in the same architecture of a contributory funded scheme. That is the critical difference. The OPS is an unfunded non-contributory scheme. This is a funded contributory scheme. The only difference in the changes that are made today is to give an assurance and not leave things to vagaries of market forces. But otherwise, the structure of UPS has the best elements of both. सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। आपने कहा सोमनाथन सर, और सर आपसे भी सवाल है अश्विनी सर से, कि 99% से ज्यादा केसेस में यह फायदेमंद रहेगा जो कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के। फिर भी सरकार ने दो विकल्प दिए हैं, एनपीएस के और यूपीएस के कर्मचारियों को। तो क्या एनपीएस का विकल्प के तौर पे कोई डेडलाइन भी रखी है सरकार ने, या कोई डेडलाइन नहीं रहेगा? No, there is no deadline. People can continue indefinitely on NPS if they wish. मेरा नाम पूनम है और मैं अमर उजाला से हूँ। मुझे लगता है हमने पेंशन स्कीम पे बहुत बात की है। बच्चों के लिए भी आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि आने जा रही है। आपने कहा विज्ञान धारा योजना है, इसमें 11th और 12th के बच्चे इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा की ओर जाएंगे। क्या है ये पूरी योजना और कैसे इसका लाभ सरकारी स्कूल के बच्चों को भी अधिक से अधिक मिल पाएगा? थैंक यू, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। आप और हम जब स्कूल के दौर से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम जब भी पढ़ते थे उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हमको जो एक्सपोजर मिलता था प्रैक्टिकल, वो होता था लैब में। लैब के अलावा प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्रैक्टिकली नहीं मिलता था और ज़्यादातर स्टडी थियोरेटिकल होती थी। और थियोरेटिकल से रियल लाइफ में जो गैप है, इस गैप को अगर फुलफिल करना है, इस गैप को फिलअप करना है, तो इस गैप को फिलअप करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक इंटर्नशिप वाली व्यवस्था बने जिसमें 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो रियल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे कंपनीज हो, चाहे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे एकेडेमिया हो, इन सब के साथ इंटर्नशिप करे और इंटर्नशिप में प्रैक्टिकल नॉलेज ले। उस प्रैक्टिकल नॉलेज के बाद में उनके आगे की जो स्टडी रहेगी वो बहुत ही अच्छा उसमें बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स को सबको इसका बेनिफिट मिलेगा और ये बहुत एक पाथ ब्रेकिंग सोच है और इसका कई आने वाले डेकेड्स तक इसका बेनिफिट मिलेगा। 93. See, OPS is not a point of reference. OPS has ceased in 2004. But this unified pension scheme has those features of the OPS which are an assured pension, inflation indexation, family pension and minimum pension. So those
features of the OPS are available in the UPS. The contributory and fully funded nature of NPS is also available in this scheme. That is why it is a unified pension scheme. नहीं, इसको मैं लेना चाहूँगा। पहले तो आपका सेकंड पॉइंट जो था उसमें एडिशनल जो बर्डन पड़ेगा वो रहेगा एक्सपेंडिचर करीब करीब 6,250 करोड़ 24-25 में, और ये हर साल वेरी करता है। ये रेफरेंस पॉइंट 24-25 का है। 6,250 करोड़ तो एडिशनल एक्सपेंडिचर, और जो एरियर्स है उस पे 800 करोड़। दूसरी बात, किसी भी सिस्टम में रिफॉर्म और सुधार करते रहने की भावना, यही एक जीवंत सरकार की निशानी। 126। सर, इंटर्नशिप में बच्चों को क्या कुछ पेमेंट मिलेगी? वैसे तो इंटर्नशिप के बारे में हमेशा ये होता है कि वो फैक्ट्रियों में जाते हैं, मगर सीए की पढ़ाई हो, लॉ की पढ़ाई हो या बीई बीटेक की हो, प्रैक्टिकल चीजें आपको पता है कंपनियां उल्टे पैसे लेती हैं। दूसरा सर, मेरा था सर से सवाल, सोमनाथ सर से, 2 डिकेड पहले से आप रेट्रोस्पेक्टिव इसको लगा रहे हैं, इसके बीच में काफी इफ एंड बट से डिमाइस हो गए, लोग किसी ने विड्रॉ कर ली, और आप फ्यूचर्स में लगा रहे हैं 1 अप्रैल 2025 से। किसी ने अगर इंडेक्स में पैसा लगाया, इंडेक्स अगर 20,000 के पॉइंट पे पहुंच गया 80 से गिर के, तो आप उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे? क्या इस तरह की प्रॉब्लम है? और इससे जुड़ा एक छोटी सी बात है सर, कि आपके डिपार्टमेंट के नीचे के लोग जो उन गवर्नमेंट ऑफिसरों के साथ रिटायर्ड होने के बाद में डील करेंगे, उनका एक जवाब होगा, जाके सोमनाथ सर से बोलो ले लेना। ये इस वाले मुद्दे की डिटेल्स आपको पता है सर, उसके लिए वहाँ डिपार्टमेंट एजुकेशन क्या रहेगी? आपका दूसरा सवाल मुझे समझ में नहीं आया, मेरा हिंदी थोड़ा लिमिटेड है, तो दूसरा सवाल मुझे समझ में नहीं आया, सॉरी। The first question was how will you deal with those who have, first of all आप इतना समझिए कि 2004 से शुरू हुआ, उसमें अभी 20 साल भी नहीं हुआ है ये, I mean just 20 years are finished. So the number of people who have retired in this is very small. See, people don't retire in 5 years normally. Only a very small number of people have retired under the new pension system. There are a lot of people in the system, but we are talking about arrears. जिन लोगों का सेवानिवृत्ति हो गया है उनको ये अरियर मिलेगा। उनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है, पीएफआरडीए में है कि उन्होंने किस दिन ज्वाइन किया, किस दिन वो रिटायर हुआ, रिटायरमेंट में कितना पैसा मिला उनको एनपीएस में, उसमें 50% एश्योर्ड देने, अगर वो एलिजिबल है 10 साल सर्विस के साथ तो उसका अमाउंट क्या है, अगर वो मिनिमम पेंशन 10,000 से कितना अमाउंट है, वो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। उस रिकॉर्ड के हिसाब से कितना उन्होंने ऑलरेडी विड्रॉ किया है, कितना उनका एडिशनल एलिजिबिलिटी है, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके, ये बिल्कुल संभव है, हमारे पास पूरा प्रोसीजर है हमारे पास, वी हैव इवन डन सम सैंपल कैलकुलेशन, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा सवाल मुझे समझ में नहीं आया। कर्मचारियों ने बहुत ही खुले दिल से इसका स्वागत किया है। आज सभी के सभी कर्मचारी संगठनों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले भी हैं। तो सोमनाथन जी ने जो ये डिटेल्ड स्टडी की है वो वाकई काबिले तारीफ है। इंटर्नशिप में डिटेलिंग आपके सामने आएगी, पर यस, इंटर्नशिप में कुछ न कुछ उसका उस पर कोई डिस्कशन नहीं। See, I do not wish to speak on behalf of state governments, but I can say that in our consultation, we got a broad, I'm giving a broad sense, I don't want to name states, it's not fair to them, it's their decision. The broad sense was that they were looking for the central architecture and most of them perhaps may choose to follow it. This is the impression I got in the meeting, but I don't want to speak for them. तो लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 125, आप दोबारा पूछना चाहते हैं कुछ? सर 2 सवाल हैं। एक तो जो विकल्प को लेकर हमने पूछा था कि वन टाइम स्विच होगा एनपीएस से यूनिफाइड
पेंशन स्कीम में? और दूसरा सवाल ये है कि जो लोग वीआरएस लेंगे उनके लिए क्या प्रावधान होगा नए पेंशन स्कीम में, यानी यूपीएस में? सो ये जो आपने कहा कि वन टाइम स्विच, हाँ, यू कैन ऑप्ट ओनली वंस, यू कैन नॉट चेंज योर ऑप्शन. आपको एक टाइम ऑप्शन करना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए कि वो चाहिए. एक बार कर दिया तो वो इट रिमेन्स फिक्स्ड. दूसरा सवाल, वॉलंटरी रिटायरमेंट में भी ये 25 ईयर मिनिमम सर्विस का प्रोविजन रहेगा, लेकिन उसमें पेंशन विल स्टार्ट ओनली फ्रॉम सुपरएनुएशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट.